جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت ہے۔ میرے حضور نے، میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بندہ اس کو یقین سے پڑھ لے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، ہاں، یقین سے، یقین سے، جو شخص اس کو یقین سے پڑھ لے، بس یقین کامل۔ اللہ رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اللہ وسعت کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اور یہ آیت وہ واحد آیت ہے جن آیات کے ساتھ، جن وظائف کے ساتھ، جن دعاؤں کے ساتھ اللہ نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں، یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے، انہی دعاؤں میں سے ہے، انہی تسبیحات میں سے ہے، انہی اذکار میں سے ہے یہ آیت۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو یہ عمل کرے گا، رب سب کچھ کے باوجود بھی جو رحمتیں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ آفات، بلیات، عذاب، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں اس ایسے ہٹیں گی، اور حتیٰ کہ بلائیں، آفتیں اگر اس کا مستحق بھی ہوگا۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ اس کے اپنی رحمت بھیج کے ان آیتوں کا فیض اور فضل اور کرم اور برکات بھیج کے اللہ اس سے وہ عذاب بلا ٹال کے اس کی طرف اور اس کی نسلوں کی طرف رحمتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں، برکتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں، اس کی نسلوں میں راحتیں، رحمتیں، عافیتیں آتی رہتی ہیں جو بندہ بھی یہ آیت مبارک پڑھتا ہے، جو بندہ بھی اس آیت کا ورد کرتا ہے۔ یہ ان اللہ والوں کے عمل ہیں جن کے اندر برکتیں ہیں اور جن کے اندر خیر ہیں۔ اور پھر فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ موت یا پھر طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جن کے عقیقے نہیں تھے، میری درخواست کرنے پہ انہوں نے 40 سال، کسی نے 60 سال اور کسی نے اس سے بھی زیادہ عقیقے کیے۔ بچے کا عقیقہ یہ حضرات فرماتے ہیں اگر نہیں کرو گے تو طرح طرح کی بیماریاں اور مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں جو ہیں اس کو ہمیشہ لگی رہیں گی جو عقیقہ نہیں کرے گا۔ یہ زندگی کے سبق ہیں جو یہ حضرات ہمیں دے رہے ہیں۔ اگلا موتی سنیں، فرماتے ہیں 4 چیزیں شیطانی وسوسوں سے ہوئیں، 4 چیزوں کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے۔ ایک مٹی کھانا، کہ کون کہتے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا فرمان عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 4 چیزیں اس کا تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے اور وہ بندے کے اوپر شیطان اور جنات اور چیزیں غالب آ جاتی ہیں۔ ایک مٹی کھانے والا، دوسرا خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا تنکے توڑنے والا، بندہ خالی بیٹھا نا تنکے توڑ رہا ہے، یا ہاتھ کو مصروف رکھا ہے، پین بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، پھر موبائل کا ڈھکنا بند کر رہا ہے کھول رہا ہے، ہاتھ مصروف رکھا ہوا، کسی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے خالی بیٹھا ہوا۔ اللہ والوں نے ہمیں زندگی کا سبق دیا ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ وہ کہ 4 چیزوں سے شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں اور پھر شیطان اس کے اندر گھر کر جاتا ہے
और जिन्नाती शैतानी तूफान, बंदिशें, परेशानियां, नाकामियां, ये किसने बयान किया? हजरत इमाम मूसा काज़िम ने। मैं सबसे पहले मिट्टी खाना, दूसरा खाली बैठे हुए मिट्टी या तिनके तोड़ते जाना, तीसरा नाखून को दांतों से काटना, हर वक्त मुंह में नाखून और दांत काटना, और चौथा दाढ़ी चबाना, अपनी दाढ़ी को दांतों के नीचे चबाना या अपनी दाढ़ी के बाल को दांतों के अंदर ले जाना। फरमाया ये वो चीज है कि जिसकी वजह से शैतानी वसाविस इसके अंदर घर कर जाते हैं और ये शैतान का साथी बन जाता है। दरूद पाक पढ़ें। फरमाया जो दाढ़ी को कंगा करता है उसको रोजी फराग होती है, बुखार जाता रहता है, जिस्म में ताकत है। और इमाम जाफर सादिक का फरमान है सर में कंगा करने से 20 किस्म की बीमारियां दूर होती हैं। और एक और फरमान है कि रोजी बढ़ती है, बाल खूबसूरत होते हैं, हाजत रवाई होती है, कमर मजबूत होती है, बलगम खत्म होता है। एक और रिवायत है दाढ़ी अगर है तो उसमें कंगा करने से औलाद की ज्यादती होती है, अल्लाह औलाद देता है। और एक और रिवायत है कि फरमाए जो शख्स, इमाम जाफर सादिक का फरमान अर्ज कर रहा हूं, जो शख्स गिनकर 70 मरतबा अपनी दाढ़ी में कंगा करे 40 दिन तक, शैतान उसके पास फिर नहीं आता। 40 दिन तक रोजाना 70 मरतबा। अब 70 से मुराद या 70 ले लें या फिर 70 से मुराद बेशुमार ले लें। अरब में 70 से मुराद बेशुमार है। ये अल्लाह वालों के मोती हैं, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये अल्लाह वालों के मोती हैं। अब सुने, हज़रत जिब्रील के हाथ सिदरतुल मुंतहा का एक पत्ता भेजा, उससे सर धोया, मलाल खत्म हो गया। अमीरुल मोमिनीन से मनकूल है कि जब अल्लाह ने, हज़रत अली करमल्लाहु वजह से मनकूल है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम का इजहार हुआ तो अल्लाह ने बेरी का पत्ता भेजा, उन्होंने बेरी के पत्ते से सर धोया, उनकी तबीयत ठीक हो गई। फरमाया एक और फरमान है अपने सर को बेरी के पत्ते से धोवो, क्योंकि कोई मुकर्रब फरिश्ता, कोई औलिल अज़्म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने खूबी और सफाई के साथ बेरी के पत्तों का तस्करा ना किया हो और उनसे न सर धोया हो। अल्लाह पाक उससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर करते हैं, और जिससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर हुआ वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला नहीं होगा, बहिश्त में जाएगी। बेरी के पत्ते से एक और रिवायत है इमाम मूसा काज़िम की, बेरी के पत्ते से सर धोने से रोजी बढ़ जाती है। साहिब नजर कहते हैं जिनको अल्लाह ने नजर दी है, फरमाया बेरी चूंकि जन्नत का दरख्त है, फर्क यह है कि सिर्फ जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं, जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं। बेरी के पत्ते दरख्त से जो बंदा सर धोता है, जिस्म धोता है, और मैंने आपको बेरी के पत्तों के अमल बताया हुआ है कि जो शख्स बेरी के 40 पत्ते ले ले, आले रसूल का इलाज और आले रसूल की निस्बतों से यह अमल बता रहा हूं। जो बंदा बेरी के 40 पत्ते ले, हर पत्ते पर 7 बार पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, जो शख्स पढ़े और फिर उस पत्ते को उबाल के उसका पानी से गुस्ल करे, एक बार चंद बार, उसके जिस्म से लाइलाज बीमारियां, जादू, बंदिशें, रुकावटें, मुश्किलात, मसाइल, ये सब खत्म हो जाएंगी जो बेरी के पत्तों से नहाए। बेरी के पत्ते जो इससे गुस्ल करे, इसको उबाल के आप सारे घर के लिए एक ही बेरी के पत्ते बना सकते हैं। सारे घर के लिए एक ही पत्ते, 40 पत्ते लें, हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ें और हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ के उसको उबाल लें, उसको उससे गुस्ल करें। एक पतीले में बना ले, एक बंदा उसमें से एक लोटा, एक मग ले ले और बाल्टी में डाल के गुस्ल कर ले और पानी
उसमें डाल के। इसके फजाइल आपने सुने, कितने कमाल फजाइल हैं। और मैं कि जो बेरी के पत्तों से धो, क्योंकि कोई मुकर्रर फरिश्ते भी और औलिल आज़म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने बेरी के पत्तों का तस्करा ना किया हो। और फरमाया जो बेरी के पत्तों से सर धोएगा, यानी सर पे डालेगा, सर धोने से मुराद पानी सर पे ही डाला जाता है ना नहाने के लिए, सर धोने से मुराद। मैं 70 दिन के लिए वसवसा शैतान दूर होगा। और वसवसा शैतान से मुराद पता है क्या है? शैतान जहां भी आएगा ना, वहां युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वहां खन्नास का जिक्र आएगा। रिवायात में जहां भी शैतान का जिक्र आएगा वहां शैतान से मुराद खन्नास हैं। और खन्नास से मुराद वो जिन्नात और शयातीन हैं जिनके जरिए जादू असर करता है। देखो लफ्ज जादू पे गौर करो, मैं लफ्ज जादू बोल रहा हूं। जी मलिफ जा को इलादा करो, दो को इलादा करो, अब बनेगा जा दो। जादू आई समझ? लफ्ज नहीं आई। अब जादू के ना जी मलिफ जा, इसको इलादा करें, यह बन जाएगा जा, जा बनेगा। आगे दाल वाव दो है। असल में जादू दो लफ्जों से जमा हुआ है। जादू जो हुआ है जो दो लफ्जों से जमा हुआ है। एक लफ्ज है जा, एक है दो। जब काला जादूगर काले जादू के ऊपर पूरा अमल करके, काले जादू पे पूरा अमल करके और उसको भेजता है अपने निशाने की तरफ। शाह अब्दुल कुद्दूस एक बहुत दुर्वेश थे, बड़ी सदियों पहले बुजुर्ग गुजरे हैं। वो बैठे थे तो ऊपर एक चमकदार चीज चलती जा रही थी। तो फरमाया देखो ये क्या है? फिर खुद ही फरमाया ये एक जादू की हांडी है जो उड़ रही है। और जादूगर ने कहा जा उसको दो। क्या दो? गम दो, दुख दो, बेऔलादी दो, मुश्किलात दो, परेशानियां दो, नाकामियां दो, हालात, कंदिशें, बंदिशें और रिस्क की तंगियां, औलाद, मसाइल, ये दो। तो फरमाया किसी जादूगर ने ये किसी के लिए भेजा है। तो कहने लगे मैं हजरत उतर सकता है? अभी उतारता हूं। हुक्म दिया, वो चीज रोशनी थी, ऊपर जा रही थी, वापस आई, देखा तो एक दहकता हुआ एक हांडी का अंगारा था। हांडी अंगारा दहकता हुआ। वो उतरा, आपने उससे पूछा किसके पास भेज रहे हो? किसके पास भेज रहे हो? उससे पूछा किसके पास भेजा गया है? तो उसने कहा जी मुझे फला फला बंदे के पास, वो फला जगह रहता है, उसके पास भेजा गया है। तो फरमाया क्या वो इस काबिल है कि उसके ऊपर अजाब भेजा जाए? कहा नहीं। तो कहा फिर तुम क्यों जा रहे? कहा मैं बेबस हूं। वो शयातीन जिन्नात कहने लगे जिनके जरिए जादू भेजा जाता है, सुनो गौर से अल्लाह वालों, और फिर आपको समझ आएगी कि बेरी के पत्तों की क्या तासीर है। और हजरत इमाम मूसा काजिम और हजरत अली और इमाम जाफर सादिक के फरमान मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में बेरी के पत्तों के बारे में। असल चीज है मानना, असल चीज है मानना। अब देखें खवातीन गलियों में बैठी हैं, अगर ये खवातीन के दिल में अल्लाह डाल देता कि हाय ये गलियों में बैठी हैं और हम कोई हाथ बात नहीं, साथ लग के बैठ जाएंगी, इनको मिन्नत करके अपने पास ले आए। अच्छा इनमें अक्सर वो है जो लाहौर में वापस जाने वाली हैं। आए ये मेहमान खवातीन किसकी हैं? आले रसूल आले बतूल की। ये किन हस्तियों की मेहमान हैं? और ये गलियों में बैठी रहे, गलियां भरी हुई हैं लेकिन बिल्डिंग्स भी भरी हुई हैं, लेकिन खवातीन, मैं एक बात बताऊं, मर्द मर्द को जगह दे देगा और औरत को जगह नहीं देगा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाने में इसके उल्टा देखा। जिसका अल्लाह ने दिल लगा दिया तस्बीह खाने में और जिसको तस्बीह खाने का फैज दे दिया, मैंने देखा है कि खवातीन गली में जाके मिन्नत करके ले आती हैं कि आप आ जाएं। अच्छा मेरा एक उसूल है सफर में, लिफ्ट में जब खड़ा होता हूं तो कहता हूं आ जाओ जगह है, क्योंकि लिफ्ट का उसूल है या नहीं चलेगी या चीखो पुकार करेगी, टू 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 करेगी कि बंदे ज्यादा है। और हमारी तरतीब जिंदगी में ऐसी ही हो। कुछ लोग हैं
जिंदगी में हर लोग में होते हैं कि लिफ्ट का इंतजार करते हैं, जब खुद लिफ्ट मिल जाती है कहते हैं रास्ता नहीं है, जगह नहीं है। ट्रेन में खुद चढ़ जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, कहते हैं अगली बोगी में जाओ, अगली बोगी में जाओ।